Assalamu alaikum, hello and welcome to this course on algebra. The course code is MTH376 and we will be talking about this course, discussing this course together throughout this semester. Well, you might want to know something about me. Okay, so my name is Dr. Muhammad Fazil Anwar and I am an assistant professor at Department of Mathematics, ComSat's Institute of Information Technology, Islamabad. I did my PhD in mathematics from University of York, UK. My area of expertise, area of specialization is representation theory of algebraic groups. So clearly, in at least the topic of my specialization, you have the name group. And in this course, you will be hearing this name again and again, groups. So, inshallah, we will have a good discussion together. I did my BS in mathematics from very same institute, ComSat's Institute of Information Technology, Islamabad. Okay, so that's a little bit information about me. Okay, so let's move on to the course. So first of all, you might want to know some books about this course. You will also get some notes inshallah, some type notes for this course, and some more helping material if we can arrange it. But if you would like to know some books, well, here are a couple of books. So you have first book is a first course in abstract algebra, so 7th edition preferably, and if you can't get hold of it, then any edition really, and it's written by John B. Fraley. Okay, so this is a basic book on this course. First few chapters of this book will cover the entire course outline for this particular course. Okay, so if you are interested in doing some more reading, there are a couple more books. So I'll first talk about the Abstract Algebra, first edition by Robert B. Ashe. So this is again a book very related to your course, and of course you can go through it. And for very interested readers, there is another book which is called Algebra by Sergey Lang. It's the 3rd edition. And this is one of the best books available in this particular area, and I must warn you, this is probably a little hard book than the others, but it also has very in-depth analysis of our course. So you can choose any of these books, and hopefully you will be able to get at least one of them available in the local market. Okay, right. So what will be our grading policy for this particular course? Well, along with other courses you might be taking in your MSc in mathematics from ComSat's Institute of Information Technology Virtual Campus, this is again a 3 hours credit course. Okay. Okay, so you have 100 marks total, and these marks are then split into few other areas like we have in semester system. So you have sessional 1 is your 10 points, so 10 marks out of 100, and sessional 2 is 15 points, so that's 15 marks out of 100. And then you have 3 quizzes and 3 assignments, and they all add up to 25 marks. So 3 quizzes, 3 assignments, at least 3 quizzes and 3 assignments, all adding up to 25 marks. So it may be possible that your quizzes may have 15 marks and assignments 10 marks, or your quizzes 10 marks and assignments 15 marks. Okay, so that's 50 marks already. So before you appear in your final exam, your 50 marks are already decided, and then there is a final exam of 50 marks. Okay, so it should be very clear and very obvious that the first 50 marks are crucial if you want to do well in your course.
So if you concentrate on your sessionals and quizzes and assignments, hopefully you will be able to get a good grade in your exam, in your exam in algebra. So this is something about the grading policy, and inshallah all the quizzes and assignments and sessionals exams will reflect a fair understanding of the course. So any question in any of the exams will correspond to your course. So if it's not from the course, then of course it's not a fair assessment. So everything you will get in an exam will correspond to your course in one way or another. Okay, so what will be in this course? What are the objectives? Why should we study this course on algebra? Well, we are students of mathematics. Well, there is then obvious reason. Why should we study algebra? Because it's part of mathematics, and we are students of mathematics, and one of the most crucial fields of maths should be studied. Okay, so what should you be able to do after you have done this course? Well, most of the motivations in these particular objectives are the motivations of or related to maths. But of course, there are some other motivations. For example, you can use this algebra all over the place. For example, you can use this in cryptography, if you like. So cryptography is hiding your information. So for example, internet, so all the information is changed into another format, and so all the emphasis nowadays is on internet security, information security. So algebra, abstract algebra has a very good application in that particular area. And of course, you can find many more applications. For example, you can search the internet for it, or you can go through your reference books. Okay, so what will be the mathematical motivation for studying algebra, and what will you be able to do after you complete this course? Okay, so you might have already done some courses in theoretical mathematics. So the main idea behind any course which is designed for the theoretical side of mathematics is that you should be able to write down mathematical proofs as they should be written down, meaning that if you give that mathematical proof to a person, to an outside person, he should be able to understand what is going on, provided that he knows all the symbols and words used in that particular proof. Okay, so you should also be able to reason abstractly in groups and rings. So as and when we define them, and as and when we define rings, we will also study some of their properties, and hopefully I'll be able to convince you that groups are not something which is useless. Hopefully I'll be able to convince you that we actually use groups, and they have a very, very important purpose in mathematics and outside mathematics. So we are interested in this particular object called groups, so our rings. So when we study them, we will also give some of their properties. तो जब हम इन ग्रुप्स और रिंग्स की बात करेंगे, जब भी हम इनको डिफाइन कर देंगे, जब इनका हम मतलब जानने लग जाएंगे, तो हम फिर इनकी कुछ प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे कि मतलब जाहिर है जब हम इनको अप्लाई करेंगे, जब इनको इन डेप्थ स्टडी करेंगे, तो उसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी जो हमें इस्तेमाल करनी होगी, तो उनके ऊपर भी हम देखेंगे। तो फिर हम उन प्रॉपर्टीज को की रीजनिंग दे सकेंगे, इस कोर्स के बाद आप दे सकेंगे। और फिर इसके अलावा कुछ चीज़ें आपने
पहले पढ़ी होंगी शायद, डिवीजन एल्गोरिदम शायद आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो हम इंशाल्लाह दोबारा इसको रिपीट करेंगे इस कोर्स में। सिमिलरली आपके पास यूक्लिडियन एल्गोरिदम भी होता है, कुछ मॉडुलो अरिथमेटिक होती है। ये कुछ नंबर्स हैं जो हम इंटीजर्स मतलब ऑलरेडी नोन नंबर से हम डिफाइन करते हैं, तो उसको भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। और फिर इनको यूज करते हुए हम इनकी प्रॉपर्टीज और वेल नोन नंबर्स इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज भी हम देखेंगे। तो हम, अगर आपको इंटीजर्स फेमिलियर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इनको दोबारा डिफाइन करेंगे अभी कुछ देर में। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव ये है कि हम कुछ ऑलरेडी नोन कॉन्सेप्ट्स हैं उनको थोड़ा सा जनरलाइज करेंगे और फिर उनको यूज करते हुए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमिलियर नंबर्स इंटीजर्स के बारे में कुछ बात करेंगे। इसके अलावा आप क्या कर सकेंगे, हमने एक चीज डिफाइन कर दी, ये ग्रुप है, लेकिन इसकी एग्जांपल्स किधर हैं? हम, वेयर आर द एग्जांपल्स, वेयर कैन आई एक्चुअली लुक एट अ ग्रुप? तो जब हम ग्रुप को डिफाइन करेंगे और हम ये कोर्स मतलब फिनिश कर लेंगे, उसके बाद आपको कुछ एग्जांपल्स भी नोन होंगी और आप अपनी मर्जी से कुछ आपको अगर ऑब्जेक्ट्स दिए जाएं तो आप ये डिसाइड कर सकेंगे, यू विल बी एबल टू डिसाइड के वेदर दे आर ग्रुप्स आर नॉट। तो आपको एक ऑब्जेक्ट दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि ये ग्रुप है या नहीं, तो आप बता सकेंगे कि ये ग्रुप है या नहीं। इसके अलावा आप, जैसे मैंने कहा कि हम कुछ प्रॉपर्टीज ग्रुप्स की यहाँ पे प्रूव भी करेंगे, उनके बारे में हम देखेंगे भी, उनकी इम्पोर्टेंस को भी स्टडी करेंगे। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो शायद आप लेटर ऑन आपको पता चलें, उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं क्योंकि आपके पास इस कोर्स के साथ बेसिक नॉलेज होगा। तो इंशाल्लाह वो आपको हेल्प करेगा जब आप मजीद इसके बारे में स्टडी करेंगे। अब एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रुप्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसके अंदर कुछ बहुत ही फेमस और बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं। ऑफ कोर्स उनकी इंपॉर्टेंस मैं लेटर ऑन हाईलाइट करूंगा कि वो क्यों इंपॉर्टेंट हैं और उनको हम कहाँ यूज करते हैं और किस तरह की उनसे हम एप्लीकेशंस ले सकते हैं। उनमें से कुछ 2-3 के नाम मैंने यहाँ लिख दिए हैं। उनमें से किसी को हम सिमेट्रिक ग्रुप कहेंगे, कोई परमुटेशन ग्रुप होगा और कोई साइक्लिक ग्रुप होगा। तो ऑफ कोर्स मतलब आपको अभी इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, लेकिन हम इन चीज़ों के बारे में जब हम इनको डिफाइन करेंगे तो फिर हम आपको ये भी आइडिया हो जाएगा ये हैं क्या, और फिर आपको ये भी इंशाल्लाह पता चलेगा कि ये हमें क्यों चाहिए और हम इनमें इंटरेस्टेड क्यों हैं। अच्छा, इसके मजीद कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो क्या हैं? अब ग्रुप्स के साथ कुछ मजीद चीज़ें एसोसिएटेड हैं, जैसे उसका एक सब ग्रुप होता है, उसके कुछ फैक्टर ग्रुप्स होते हैं, अब कुछ ग्रुप फाइनाइट होते हैं, कुछ फाइनाइट नहीं होते हैं। तो इस तरह इन सब की प्रॉपर्टीज़ हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह जब जो हम इस कोर्स में आगे जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा अब हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं, तो वो एज इट इज़ पढ़े हुए हैं, उनके दरमियान में कुछ रिलेशंस होंगे, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में कोई रिलेशन होगा, तो उन रिलेशंस को भी हम स्टडी करेंगे कि 2 ग्रुप्स हैं हमारे पास, उनके आपस में क्या ताल्लुक है, आपस में उनका क्या रिलेशन है। तो इसमें हम फिर जैसे मैंने इसमें लिखा कि होमोमॉर्फिज्म्स ग्रुप्स में, तो होमोमॉर्फिज्म ऑफ कोर्स बाद में हम डिफाइन करेंगे, लेकिन इसका बेसिकली मतलब ये है, यहाँ पे इसका मतलब आप यूँ समझ सकते हैं कि आपके पास 2 ग्रुप हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके आपस में रिलेशन क्या है। ग्रुप जो भी चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चीज़ है, जैसे आई डोंट नो मे बी कोई सेट हैं, कोई नंबर्स हैं, तो उनके आपस में क्या रिलेशन है। तो ये भी हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे और फिर हम इन सब जो भी टर्म्स इसमें यूज हो रही हैं इंट्रोडक्शन में, इनके बारे में डोंट वरी, विल बी एबल टू डिफाइन देम एंड ऑल सारी चीज़ें फॉर्मल होंगी इंशाल्लाह। इसके अलावा जब हम ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट करेंगे, फिर हम ग्रुप्स से की थोड़ी सी जनरलाइजेशन है, आपको मैं बताऊंगा और दिखाऊंगा कि सारी चीज़ें जो हैं वो ग्रुप की एम्ब्रेला के अंदर जो हैं हमें इनफ प्रॉपर्टीज़ नहीं मिलती जो हमें चाहिए होती हैं इन रियल लाइफ सिनेरियोज।
तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम थोड़ा सा ग्रुप्स को जनरलाइज करते हैं और हमारे पास कुछ नए ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं जिनको हम रिंग्स कहते हैं। और हम इंशाल्लाह फिर थोड़ा सा ब्रीफली मेन एम्फेसिस जो है हमारा पूरे कोर्स का, जैसे आपको ऑब्जेक्टिव से भी शायद आइडिया हो रहा होगा कि हमारा पूरे कोर्स का मेन एम्फेसिस जो है वो ग्रुप्स के ऊपर होगा, लेकिन लेटर पार्ट के अंदर कुछ लेक्चर्स के अंदर हम रिंग्स की भी कोई बात करेंगे। वो ग्रुप्स की जनरलाइजेशन है तो कैसे जनरलाइज करते हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, और मतलब किस तरह ग्रुप्स के रिजल्ट्स रिंग्स में कैसे जनरलाइज होते हैं। जैसे मैंने कहा कि ग्रुप कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको मैंने जनरलाइज किया तो मैंने रिंग बना दी। तो अब ग्रुप में कुछ प्रॉपर्टीज, मुझे कुछ रिजल्ट्स नोन है, तो उनको मैं रिंग्स में कैसे जनरलाइज करूंगा, वो कैसे जनरलाइज होते हैं। तो ये भी हम इस चीज के बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। फिर रिंग्स के साथ कुछ एसोसिएटेड चीजें हैं, इंटीग्रल डोमेन्स होती हैं और पॉलिनोमियल रिंग्स, स्पेशल रिंग्स होती हैं जो बहुत बहुत स्पेशल रिंग्स हैं। तो उनके बारे में भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे इस कोर्स के अंदर। तो ये हमारे कुछ कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं। आपने देखा होगा कि ये सारे के सारे मैथमेटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो हम मास्टर्स मैथमेटिक्स में कर रहे हैं, तो हमारा मेन एम्फेसिस जो है, मेन आइडिया जो है, मेन एम्फेसिस वो मैथमेटिक्स की साइड के ऊपर है। लेकिन जैसे जैसे हम जाएंगे इंशाल्लाह हम कुछ ना कुछ चीज की रियल लाइफ में एप्लीकेशंस भी देखेंगे, और होपफुली आप फिर सोच रहे होंगे बैठे कि ये हम चले मैथमेटिक्स पढ़ लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, जॉब क्या करेंगे। तो आपको इंशाल्लाह कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स के साथ साथ इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशंस और हम इसको कैसे यूज करके क्या हम इसकी एप्लीकेशंस निकाल सकते हैं, तो इंशाल्लाह उसके बारे में भी थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। लेकिन चूंकि आपका कोर्स अलजेब्रा का है, ग्रुप्स पढ़नी है, रिंग्स पढ़नी है, तो अगर हम अपने एम्फेसिस से थोड़ा हट जाएंगे तो आपका एक और गोल भी है कि आपने इस कोर्स को क्लियर करना है और इसको पास करना है और नॉलेज गेन करना है। तो वो फिर नॉलेज कंप्लीट नहीं होगा हमारा। तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ एम्फेसिस हम एप्लीकेशन साइड पे भी करेंगे, लेकिन मेन गोल और मेन एम्फेसिस जो है वो हमारा मैथमेटिक्स साइड पे ही रहेगा। अच्छा, अब इसमें यह है कि कैसे हम चलेंगे, क्या हमारा सीक्वेंस क्या होगा। सीक्वेंस हमारा ये है कि ऑफ कोर्स अलजेब्रा है तो मैंने आपको कहा कि इसमें ग्रुप्स होंगी और रिंग्स होंगे और उनसे एसोसिएटेड कुछ चीजें होंगी। तो हम ऑफ कोर्स ग्रुप्स को डिफाइन करेंगे, उनका बैकग्राउंड मटेरियल जितना हमें चाहिए होगा वो हम उसको लेंगे। इस कोर्स में मैं कोई भी चीज़ एज सच अज्यूम नहीं कर रहा आपका नॉलेज। आप अगर स्क्रैच से भी स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम इंशाल्लाह कुछ बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज जो मुझे यकीन है कि आपको पता होंगी, आई एम श्योर यू विल नो देम। तो just using them we will get to our core. So if, for example, if you are not sure about something, don't worry about it. We will define it and we will give you a clear sight of what is going on. तो अब इसमें अगर कोई ऐसी डेफिनेशन आ जाती है, कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो आपको नहीं पता, तो वो चीज़ आपको आपकी बुक में मिल जाएगी। जैसे जॉन बी फ्रेले की बुक मैंने आपको बताई, या नोट्स आपको जो मिलेंगे उसमें भी इंशाल्लाह आपको वो मिल जाएंगी। तो उस नोट्स के अंदर होपफुली हम कोशिश करेंगे कि आपको कुछ मज़ीद इसमें डिटेल्स भी मिलें और कुछ मज़ीद बुक्स अगर जो रेडिली अवेलेबल हो मार्केट में या जो आपको इंटरनेट पे मिल जाएं, वो भी इंशाल्लाह हम इसमें उसके रेफरेंसेस आपको देंगे। और ऑफ कोर्स कुछ कांटेक्ट का भी आपके जो कोर्स का पेज होगा, जब आप इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे उसके ऊपर आप इंस्ट्रक्टर से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चंस हों, कोई चीज़ ऐसी जो समझ ना आ रही हो, तो आप ऑफ कोर्स कांटेक्ट कर सकते हैं, तो फिर हम उसके ऊपर बात कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो हम ग्रुप के बारे में बात करेंगे, उसकी बैकग्राउंड मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे जितना एक पॉसिबल हुआ और जितना एक आपको ज़रूरत है, और एक्सटेंसिव रीडिंग के लिए आप रेफरेंसेस देख लीजिएगा। और जब हमारे पास इनफ बैकग्राउंड आ जाएगा जो हमें डिफाइन करने के लिए चाहिए ग्रुप को, तो फिर हम फाइनली ग्रुप को डिफाइन करेंगे और उसकी एग्जांपल्स देंगे। तो so when we'll be able to define groups, we'll define them and I will also give you a lot of examples, hopefully a lot of examples। और फिर ग्रुप होगा तो उसके अंदर
कोई ऑब्जेक्ट होगा, आपको मैं आगे जाके बताऊंगा, उसके अंदर कुछ कुछ उसके एलिमेंट्स होंगे, फिर उनका कुछ ऑर्डर होगा, ये सारी चीज़ें आगे जाके मैं डिफाइन कर दूंगा। फिर उसके नेक्स्ट हम उसके सब ग्रुप्स देखेंगे, जनरेटर्स देखेंगे, उसमें रिलेशंस देखेंगे। फिर हम कुछ फ्री ग्रुप्स की बात करेंगे, साइक्लिक ग्रुप्स की बात करेंगे, फाइनाइट ग्रुप्स की बात करेंगे। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि सारे ग्रुप फाइनाइट नहीं होते और सारे ग्रुप इनफाइनाइट नहीं होते, लेकिन शुरू हम आसान से करते हैं जो कि फाइनाइट हैं, और फिर उसके बाद हम थोड़े मुश्किल पे जाते हैं जो कि फाइनाइट नहीं है। फिर हमारे पास, जैसे कुछ देर पहले भी हमने ऑब्जेक्टिव्स में भी कहा कि हम परमुटेशन ग्रुप्स डिफाइन करेंगे। अब मैं फिर एम्फेसाइज कर देता हूं कि परमुटेशन ग्रुप्स बहुत अहम हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके ऊपर हम बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करेंगे, आपको बहुत सारी एग्जांपल्स इसकी दिखाएंगे, तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा कि ये ग्रुप्स वाकई इंपॉर्टेंट हैं। और आपका जब तक कोर्स हम ख़त्म करेंगे उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ग्रुप्स कुछ भी नहीं है। आपको जब शुरू में डेफिनेशन पता चलेगी शायद आप समझेंगे ये क्या, मैथमेटिक्स का ये कुछ कंडीशंस हैं और ऐसी चीज़ें, लेकिन जब हम कोर्स में थोड़ा आगे जाएंगे फिर आपको पता चलेगा कि परम्यूटेशन ग्रुप्स ही ग्रुप्स हैं, यही असल चीज़ है, बाकी जो है इसकी क्लासिफिकेशन ही है बस। तो हम इंशाल्लाह, परम्यूटेशन ग्रुप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर क्रूशल टू आवर कोर्स, तो इनके ऊपर हम बहुत एम्फेसिस करेंगे। और फिर हम कुछ टर्म्स हैं मजीद, कोसेट्स हैं, कुछ लैग्रांजेस थ्योरम है, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह बात करेंगे हम। अच्छा, फिर इसके मजीद कुछ नॉर्मल ग्रुप्स हैं, फिर सिंप्लिसिटी होती है, नॉर्मलाइजर क्या होते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। जो हम इंशाल्लाह इस कोर्स में आगे जाएंगे तो हम इन सब चीज़ों के बारे में आप फेमिलियर होंगे। होमोमॉर्फिज्म, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ा सा बताया कि ये रिलेशन होते हैं दो ग्रुप्स के दरमियान, तो ये भी, इनकी भी बात करेंगे। फिर कुछ फैक्टर ग्रुप्स बनाते हैं हम, इन सारी चीज़ों की और इनकी इंपॉर्टेंस की बात इंशाल्लाह आपको साथ साथ पता चलती रहेगी। आइसोमॉर्फिज्म क्या होते हैं, ऑटोमॉर्फिज्म क्या होते हैं, और आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम क्या होते हैं, इन पे भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे जो हम इस कोर्स में आगे जाएंगे। फिर जैसे ऑब्जेक्टिव्स में था कि रिंग्स भी होंगी, उनको हम डिफाइन करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, एग्जांपल्स देंगे, उनको जितना हमें पॉसिबल हुआ हमारे लिए हम उनको एलैबोरेट करेंगे, और इंशाल्लाह आपके लिए उनको फिजिबल बनाएंगे, अंडरस्टैंडेबल बनाएंगे, जिस लैंग्वेज में जिस तरह आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो हम इंशाल्लाह इनफ टाइम स्पेंड करेंगे इनके ऊपर। फिर हम इंटीग्रल डोमेन्स की बात करेंगे, जैसे मैंने कहा ये रिंग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, तो इनके ऊपर हम बात करेंगे। और फिर उसके बाद पॉलिनोमियल रिंग्स की भी बात करेंगे। तो पॉलिनोमियल रिंग्स, जैसे मैंने कहा कि ग्रुप्स में परमुटेशन ग्रुप्स बहुत अहम होते हैं, तो रिंग्स में पॉलिनोमियल रिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इन पे भी इंशाल्लाह कुछ टाइम स्पेंड करेंगे और इनके ऊपर एम्फेसिस करेंगे। तो फिर रिपीट कर देता हूँ कि ग्रुप्स मेन कोर है कोर्स की, इसके ऊपर ज़्यादा बात होगी, और रिंग्स और बाकी चीज़ों के ऊपर बहुत थोड़ा कम टाइम स्पेंड किया जाएगा। तो लास्ट वाले लेक्चर्स जो हैं वो होंगे। अब ये कुछ चीज़ों की तरतीब मैंने दी हुई है, लेकिन हो सकता है कि ये चीज़ें इस तरतीब में ना हो, तो थोड़ा सा आगे पीछे मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं। जैसे हमारा कोई कॉन्सेप्ट है, उससे कोई रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, तो हम उसको उसके साथ कवर कर लेंगे, लेकिन होपफुली यही तरतीब रहेगी आपकी, तो इंशाल्लाह आप अंडरस्टैंड कर लेंगे इसको। अच्छा, मूविंग ऑन। तो अब हम थोड़ा सा कोर्स को स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे इस कोर्स में क्या है। तो फर्स्ट चैप्टर में ग्रुप्स और सब ग्रुप्स, मेन एम्फेसिस इस पूरे कोर्स का ग्रुप्स और सब ग्रुप्स हैं। तो चैप्टर 1 में हम उनको डिफाइन करेंगे, कुछ उनकी एग्जांपल्स देंगे, और उसके बाद आगे जब जाएंगे तो फिर उनकी मजीद जो डेफिनेशन जो आपने अभी कोर्स आउटलाइन में देखी हैं वो इंशाल्लाह आती रहेंगी। तो ग्रुप्स और सब ग्रुप्स जो हैं वो इस चैप्टर में आएंगे। आज हम कोशिश करेंगे ग्रुप्स को डिफाइन करें, लेकिन हो सकता है कि हम आज हमारे पास इस पहले लेक्चर में इनफ टाइम ना हो, तो हम जितना बैकग्राउंड मटेरियल पॉसिबल हुआ हम उसको कवर करेंगे और इंशाल्लाह ग्रुप की डेफिनेशन पे आएंगे।
अच्छा, ग्रुप को डिफाइन करने के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए? हमें पहली चीज़ ये चाहिए, क्या चाहिए जी, हम कुछ इंट्रोडक्शन देंगे कुछ चीज़ों का, फिर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करेंगे और इंशाल्लाह हम ग्रुप को डिफाइन करेंगे इंशाल्लाह। तो इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं कि इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या है। हमारे पास इंट्रोडक्शन, सबसे आसान चीज़ जो मैथमेटिक्स में जो सबसे पहली चीज़ आपको मिलेगी यूजुअली, वह है सेट क्या होते हैं। सेट क्या चीज़ है? सेट ऑब्जेक्ट्स की कोई कलेक्शन है। अच्छा, तो ऑब्जेक्ट्स क्या चीज़ें हैं? ऑब्जेक्ट्स आप एक जनरल इंग्लिश टर्म है जो आप किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कमरा है आपके पास, तो उसके अंदर चेयर्स आपके ऑब्जेक्ट्स हैं। एक बिल्डिंग है, उसके अंदर रूम्स आपके ऑब्जेक्ट्स हैं। एक आपका रूम है, तो उसके अंदर आपके फॉर एग्जांपल कंप्यूटर पड़ा हुआ है या आपकी दूसरी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो वो सब आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उस रूम के अंदर। इसी तरह जैसे मैंने बिल्डिंग की एग्जांपल दी, तो बिल्डिंग में रूम्स जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स हैं। और इसी तरह एक लेट्स से सिटी में उसकी बिल्डिंग्स उसके ऑब्जेक्ट्स हैं, और सो ऑन सो फोर्थ। तो हमने क्या करना है, हमने सेट बनाना है, तो हमने कोई से ऑब्जेक्ट्स लेने हैं और उनको एक सेट के अंदर लिख देना है, एक लेट्स से कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख देना है, उनको इकट्ठा करके लिख देना है, वो हमारा एक सेट बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप लेते हैं सेट ऑफ रूम्स इन अ बिल्डिंग, in your house for example, so maybe you have three rooms in your house, so आपके घर में अगर let's say 3 rooms हैं, तो आपका जो सेट है उसमें 3 कमरे आप let's say room 1 room 2 room 3, तो ये आपका एक सेट हो जाएगा। तो ये क्या है, जस्ट एक इजी कॉन्सेप्ट है कि हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए, उनको कलेक्ट करके एक सेट के अंदर लिख दिया। अब सेट की यूजुअल नोटेशन ये होती है कि जैसे आपने अभी ये सेट में देख रहे हैं कि S इज इक्वल टू, ये हमने करली ब्रैकेट्स दिए हैं और फिर ये सेट बनाए, ये यूजुअल नोटेशन है सेट की, तो हम इसको सेट को यूजुअली इसी तरह लिखते हैं। तो अब इसमें ये वाला एक सेट है जैसे, सो S इज इक्वल टू करली ब्रैकेट्स 1 2 3 अप टू सो ऑन 10। तो अब ये इसमें हमने सेट लिया और इसमें मैंने क्या किया है, मैंने नंबर्स रखे हैं, नंबर्स जो वेरी फेमिलियर नंबर्स हैं आपके। अब इस सेट का क्या मतलब है? इस सेट का मतलब ये है कि इस सेट में सारे नंबर्स हैं 1 से 10 तक, सो एवरी नंबर फ्रॉम 1 to 10 इज इन दिस सेट। आप ये नोट कर रहे होंगे कि 1 2 3 के बाद मैंने 3 डॉट्स लगाए। अब 3 डॉट्स का मतलब ये होता है कि इन जितने भी आप नंबर्स इसमें डालना चाहें वो इसमें आ सकते हैं। तो ये 1 से शुरू हो रहा है और 10 तक जा रहा है, उसके दरमियान जितने भी नंबर्स हैं, तो ये इसमें ये 3 डॉट्स इज वेरी स्टैंडर्ड नोटेशन। सो आपको जब भी आप ये डिनोट करना चाहें कि आप इसके बाद वाले सारे, तो आप 3 डॉट्स लगाते हैं, 3 से ज्यादा नहीं और कम भी नहीं। 3 डॉट्स इज अ वेरी वेरी स्टैंडर्ड नोटेशन। अच्छा, अब मैंने कुछ एक और एग्जांपल दिया, जैसे सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स अप टू 10। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर ये वो नंबर होते हैं जो खुद पे और 1 पे डिवाइड होते हैं, इसके अलावा किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल आपने नंबर लिया 2, तो 2 इज ओनली डिविजिबल बाय 1 and 2, एंड 2 एक प्राइम नंबर है। इस तरह 3 आप लें, 3 को आप सिर्फ 1 से और 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए 3 भी एक प्राइम नंबर है। इसी तरह 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, और इसके अलावा 1 से 10 के दरमियान कोई प्राइम नंबर नहीं है। अब 1 भी खुद पे और खुद पे डिवाइड होता है और 1 पे डिवाइड होता है, लेकिन 1 को हम प्राइम नंबर नहीं लेते। तो प्राइम नंबर्स आर बिगर देन आर इक्वल टू 2। सो जो भी प्राइम नंबर है वो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए कि वो खुद पे और 1 पे डिवाइड होता हो, इसके अलावा किसी नंबर पे डिवाइड ना होता हो, लेकिन वो 1 से बड़ा होना चाहिए। सो 2 हमारा जो है वो पहला प्राइम नंबर है। तो अब अगर मैं ये लिखना चाहूँ कि इस सेट के अंदर कौन कौन से नंबर आएंगे, तो ये सेट में अगर बनाऊं अपना S, तो इस सेट में मेरे पास नंबर हैं जनाब, प्राइम नंबर्स की बात कर रहा हूँ, तो 2 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा और 7 आएगा। 7 आएगा, इसके अलावा इसके अंदर कोई नंबर नहीं आएगा।
तो ये जो मेरा सेट एस है इसके अंदर ये वाले प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7। अब इसके अलावा 1 to 10 के दरमियान कोई प्राइम नंबर्स नहीं है। अच्छा, तो अब इसमें इस सेट में मेरे पास कितने नंबर हुए? 1, 2, 3, 4, 4 नंबरों का ये सेट है, ठीक है। अच्छा, अब तीसरे सेट की मैं बात करता हूँ। इस सेट में मैं कहता हूँ जी सेट ऑफ ऑल सिटीज ऑफ पाकिस्तान। अब सेट एस के में मैं रख रहा हूँ ऑब्जेक्ट्स क्या हैं इस सेट के? पाकिस्तान के शहर। जैसे पाकिस्तान के शहर आप लिखना चाहें तो ये तीसरा वाला जो मेरा सेट है एस, इसके अंदर मैं रखूंगा लेट्स से मे बी इस्लामाबाद। सो मैं इसको ISB से लिख देता हूँ और इसके अंदर मैं रखूंगा रावलपिंडी लेट्स से, और मे बी पेशावर, और मे बी इसके अंदर आप कोयटा इंट्रोड्यूस कर लें, और इसके अंदर आप कराची ले लें, और इसके अंदर और बहुत सारे आपके पाकिस्तान के शहर हैं। तो आप जब ये सेट लिखना चाहें तो आपने क्या किया, आपने इसमें इस्लामाबाद लिख दिया, आपने रावलपिंडी लिख दिया, पेशावर लिख दिया, कोयटा, कराची, तो इसके अलावा पाकिस्तान के सारे खूबसूरत शहर। तो पाकिस्तान के सारे शहर खूबसूरत हैं और इसमें पाकिस्तान के आपने सारे खूबसूरत शहरों के नाम लिख दिए, तो ये आपका सेट बन गया जो 3 में मैंने लिखा है, सेट ऑफ ऑल सिटीज ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, अब नंबर 4 जो है उसमें मैं कहता हूँ कि क्या करना है, एक सेट बनाना है। क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमने ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन करनी है। ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? जो भी आप सारे स्टूडेंट्स MSc मैथमेटिक्स कर रहे हैं वर्चुअल कैंपस ऑफ कॉमसेट से। अब इन सब को मैं के नाम फॉर एग्जांपल लूँ, उनको कलेक्ट करूँ और वो सारे इस सेट के ऑब्जेक्ट्स हैं और इनको मैं इस सेट में लिख दूँ, तो मेरा ये एक सेट बन जाएगा क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको मैंने इकट्ठा करके लिख दिया। यही सेट की डेफिनेशन है। तो हमने क्या किया कि इस सेट के अंदर आप तमाम स्टूडेंट्स जो MSc मैथमेटिक्स कर रहे हैं वर्चुअल कैंपस ऑफ कॉमसेट से, उनका जो सेट है वो 4th आपकी एग्जाम्पल में ये हमारे पास सेट है। इसी तरह आप बहुत सारे सेट्स बना सकते हैं, बहुत सारे सेट्स आप बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप एक्सरसाइज ट्राई करना चाहें तो आप कहेंगे कि अच्छा चलें कुछ नए सेट्स बनाते हैं, तो आप अपने रूम में जो चेयर्स हैं उनको कोई लेबल दे दें कि ये मेरी चेयर 1 है, ये चेयर 2 है, ये चेयर 3 है, तो आप कहें कि ये मेरा सेट है चेयर 1, चेयर 2, चेयर 3 का। इसी तरह आप इनको मजीद सेट्स बना सकते हैं, पाकिस्तान के रिवर्स का सेट और पाकिस्तान के जो डिविजन्स हैं उनका सेट्स, और इसी तरह बहुत सारी चीज़ों के सेट बन सकते हैं। तो सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। आपने कोई भी ऑब्जेक्ट्स लिए, उनको कलेक्ट करके एक जगह रख दिया, ये आपका सेट है। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, हम सेट को इस नोटेशन से डिनोट करते हैं। ये आपने जब भी कोई सेट लिखना हो तो आप इस तरह बस करली ब्रैकेट्स लगा देंगे और इसके अंदर आपने ऑब्जेक्ट्स लिख देंगे। तो जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं वो इन करली ब्रैकेट्स के अंदर आएंगे और वो आपका एक सेट बन जाएगा। और मैंने इन सब सेट को S का नाम दिया है, आप इनको डिफरेंट नाम दे सकते हैं। S मैंने इसलिए इनको कहा है कि सेट S से स्टार्ट होता है। तो ये आपके कुछ सेट हैं, उनकी एग्जांपल है। कुछ सेट्स ऐसे हैं जो बहुत बहुत अहम हैं, जिनको हम पूरे इसके अंदर यूज़ करेंगे और उनकी एग्जांपल्स देखेंगे, उनको एज एग्जांपल्स भी यूज़ करेंगे दूसरी चीज़ों की। तो उन सेट्स को हम सेपरेटली लिखते हैं। वो क्या हैं? ये नंबर सेट्स हैं जो मैंने आपको दिए हैं। ये बहुत अहम सेट्स हैं। इन सेट्स में क्या करना है, मेरे पास हैं जी नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? आपने ये डेफिनेशन होपफुली पहले देखी होगी कि नेचुरल नंबर्स हैं सेट जो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। इसमें कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव नंबर नहीं होते और इसके अंदर 0 भी नहीं होता। तो नेचुरली हम काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते हैं, नेगेटिव को हम काउंटिंग में नहीं लेते। तो इसलिए हम नेचुरल नंबर्स उनको कहते हैं जिनको हम काउंटिंग में यूज करते हैं, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। अच्छा, फिर हम अगर इसी सेट में नेचुरल नंबर्स में 0 भी इंक्लूड कर दें तो ये हमारे होल नंबर्स हो जाते हैं। अब 0 भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो हमें 0 की भी अक्सर ज़रूरत पड़ती रहती है। तो ये भी हमारे
हमारे होल नंबर्स में 0 हम इंक्लूड कर देते हैं। अब कुछ बुक्स में आप देखेंगे, ये एक छोटी सी वार्निंग है कि कुछ बुक्स में आप देखेंगे कि ये होल नंबर्स का जो सेट है इसी को नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। तो आप इससे कंफ्यूज ना होइएगा। हमारी इस कोर्स में ये डेफिनेशन जो है वो ये है कि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होंगे और होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होंगे। अच्छा, फिर हमारे पास है Z से हम डिनोट करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। तो हमारे पास नेचुरल नंबर्स में नंबर हो गए स्टार्ट 1 से, 1 2 3 सारे पॉजिटिव नंबर आ गए। फिर हमने होल नंबर्स में 0 भी इंक्लूड कर दिया, लेकिन हमें पता है कि नेगेटिव नंबर भी होते हैं। जैसे हम 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें, वेल हमारे पास आंसर -3 आता है। तो वो नंबर हमारे पास कहाँ से आएगा? तो उसको हम इंटीजर्स का सेट बनाते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर और 0 भी उसमें इंक्लूड कर देते हैं। और मुझे यकीन है कि ये सारी डेफिनेशंस आपको पहले से नोन होगी, लेकिन चूंकि हम सेट्स की बात करें, इन सेट्स को मैं अगेन एंड अगेन यूज करूंगा और इन सेट्स की जो एग्जांपल्स हैं वो आपको बहुत बार नजर आएंगी इस पूरे कोर्स के अंदर। तो ये बेहतर है कि मैं इसको इंट्रोड्यूस करा दूं। अच्छा, अब इसमें कुछ रैशनल नंबर्स होते हैं। फिर अब इंटीजर्स जो हैं वो हमने डिफाइन कर दिए कि ये 1 2 3 हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हैं, 0 भी है। अब हम ये भी तो कर सकते हैं कि 1 को 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा। अब 0.5 ये नंबर है, हाफ हमारे पास वेल नोन कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल किसी केक का हाफ या इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हमारे पास नोन है। तो हम जब इस तरह नंबर्स को डिफाइन करते हैं, इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करें, हम इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करें। सो 1 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं आप, 3 को 4 से, इसी तरह इंटीजर को इंटीजर से, नेगेटिव इंटीजर से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो जब हम इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करें, P/Q, P इंटीजर है, Q भी इंटीजर है, और ऑफ कोर्स हम डिवाइड कर रहे हैं। तो जब आपको ये पता होगा कैलकुलस के कोर्स से कि अगर नीचे जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो जाए तो ये अनडिफाइंड हो, इन्फिनिटी हो जाता है। तो हम इसमें जो भी नंबर्स हम Q में रखेंगे वो सारे के सारे फाइनाइट नंबर्स होंगे। तो हम इसलिए ये कंडीशन लगा रहे हैं कि Q जो है ना वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी P और Q कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इस सेट में बहुत सारे नंबर्स आएंगे। जैसे आप एग्जांपल मैंने आपको वैसे वर्बली दी कि कौन से नंबर्स होंगे इस सेट में। तो आप कुछ एग्जांपल्स लेट्स से लिखना चाहते हैं, आप कह सकते हैं 2/3 एक एग्जांपल है, 1/3 एक एग्जांपल है, 4/3 एक एग्जांपल है। ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। मे बी 2/4 एक एग्जांपल है। अच्छा, अब इसमें मैं ये भी तो एग्जांपल बना सकता हूँ कि इंटीजर, न्यूमरेटर भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर भी इंटीजर है। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि 3/1 यकीनन कह सकता हूँ। तो अब ये नंबर इक्वल टू 3 है। इसी तरह मैं ये सारे इंटीजर्स के साथ कर सकता हूँ। जैसे मैं हर इंटीजर को 2 को 1 से डिवाइड करूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे इंटीजर्स भी रैशनल नंबर्स हैं। तो इंटीजर्स जितने भी हैं वो सब रैशनल नंबर्स के सेट में आ रहे हैं, और रैशनल नंबर्स में और भी बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन इंटीजर्स ऑलरेडी उसमें हैं। तो ये हमारा सेट रैशनल नंबर्स का है, जिसमें हम इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं और जो हमारे पास रिजल्टिंग नंबर्स आते हैं उनको हम इस सेट में लिख देते हैं। तो हमारे पास रैशनल नंबर्स बन जाते हैं। ऑफ कोर्स फिर मैं रिपीट किए देता हूं कि Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 होगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास बात होगी रैशनल नंबर्स की। अब इसके अलावा कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करने से नहीं आते हैं। अच्छा, वो कौन से नंबर होते हैं? अच्छा, उनके बारे में हम बात करते हैं। आपको ये तो पता होगा कि हम स्क्वायर रूट डिफाइन कर सकते हैं नंबर का ना, अंडर रूट, अगर आपने इसका नाम सुना हो, ये स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट क्या होता है जी? मैं लेट्स से स्क्वायर रूट लेता हूँ 2 का। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब आपके पास ये कोई नंबर आ जाएगा। अब इसको ऑफ कोर्स कैलकुलेटर में अगर डालेंगे तो वो आपको कोई वैल्यू देगा 1 पॉइंट समथिंग। तो आप
अगर कैलकुलेटर में देखेंगे तो वो वैल्यू जो है वो नंबर्स डिजिट्स चेंज होते रहेंगे, और आप लेट्स से आपकी कैलकुलेटर की स्क्रीन 10 नंबरों वाली है तो उसमें 10 आएंगे। अगर आप के कैलकुलेटर की स्क्रीन लेट्स से 100 नंबरों वाली है तो आपको उसके पॉइंट के बाद 100 नंबर मिल जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इसकी पॉइंट के बाद वाली एक्सप्रेशन जो हमें सही नहीं पता कि वो क्या है सारे नंबर्स, तो आप इसको कैलकुलेट करते रहते हैं, आपके पास मजीद एंड मजीद एक्सप्रेशन आती रहती हैं। तो स्क्वायर रूट 2 एक ऐसा नंबर है जिसको हम p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और इसका हम अगर आप रियल एनालिसिस का कोर्स पढ़ेंगे तो उसमें आप इसका प्रूफ भी देखेंगे कि ये स्क्वायर रूट 2 जो है वो एक रैशनल नंबर नहीं है। तो इसी तरह और भी बहुत सारे नंबर होते हैं जो रैशनल नहीं होते। स्क्वायर रूट 3 जो है वो एक रैशनल नंबर नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ 5, जितने भी प्राइम नंबर, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्राइम नंबर डिफाइन किए हैं, तो जितने भी प्राइम नंबर हैं वो उनमें से कोई भी जो है वो रैशनल नंबर नहीं है। तो अब इन सारे नंबर्स का क्या करें, इनको भी तो किसी सेट में लिख सकते हैं हम। तो इनको हम सेट एक नया बनाते हैं, उसको मैंने आई कह दिया फॉर एग्जांपल, और इसमें मैं कहता हूँ ये सेट ऑफ सारे इररेशनल नंबर है। वो नंबर जो रैशनल नहीं है वो इररेशनल है। तो हर वो नंबर जिसको मैं p ओवर q इंटीजर ओवर इंटीजर की फॉर्म में नहीं लिख सकता वो मेरा इररेशनल नंबर है। तो अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, स्क्वायर रूट 2 एक इररेशनल है, स्क्वायर रूट 3 इररेशनल है, स्क्वायर रूट 5, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सब का स्क्वायर रूट इररेशनल नंबर है। अब इसी तरह कुछ और इररेशनल नंबर्स भी हैं, जैसे पाई आपने सुना होगा। पाई जो सर्कल का फॉर एग्जांपल एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो अब इसमें पाई क्या है, आपने हो सकता है वैल्यू लियो पाई की, पाई जो है वो इक्वल है 22/7। अच्छा, आपने लिखा पाई 22/7। अच्छा, तो अब आपने ये पाई का सिंबल है, आपको पता ही होगा, इसको आप लिख देते हैं 22/7। ठीक है। अब आप कहते हैं जी 22 एक इंटीजर है, ऑफ कोर्स एक इंटीजर है, 7 भी एक इंटीजर है। तो अब पाई जो है उसको आपने लिख दिया इंटीजर ओवर इंटीजर, तो अब ये तो रैशनल हो गया। तो मतलब मेरा क्लेम ये है कि पाई जो है वो एक्चुअली एक इररेशनल नंबर है। तो पाई जो है 22/7 के इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, ये इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू है इसकी। अब जब हम स्क्वायर रूट 2 की बात करते हैं तो आपने देखा, आपको जैसे मैंने कहा कि आप जितना बड़ा कैलकुलेटर की स्क्रीन लेते जाएंगे आपके पास उतनी ही पॉइंट के बाद वैल्यूज आती जाएंगी और उनमें कोई पैटर्न नहीं होगा, आप ये गैस नहीं कर सकते ये अगली वैल्यू क्या होगी। तो आप कहते हैं चलें जी हम 3 वैल्यूज पे स्टॉप कर देते हैं, हम पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिखेंगे। अब वो स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू तो नहीं है, वो उसकी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है कि तकरीबन इतना है, लेकिन ये नहीं है। इसी तरह पाई जो है वो एक इररेशनल नंबर है और 22/7 उसकी वैल्यू नहीं है, ये उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। हम कहते हैं कि ये तकरीबन इतना है, लेकिन इससे बेहतर और बेटर अप्रोक्सीमेशन पाई की हमें नोन है। ये जस्ट एक इजी टू यूज अप्रोक्सीमेशन है, इसलिए हम यूजुअली इसको यूज करते हैं, लेकिन इसकी बहुत बेहतर पाई की इससे अप्रोक्सीमेशन नोन है। तो इसके बारे में ये बड़ा अच्छा टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग मटेरियल है। अगर आप कभी इसके बारे में स्टडी करना चाहें तो आप फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी हो तो आप उस पर जाएं और इसको सर्च करें कि ये इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अच्छा, अब हमारे पास रैशनल नंबर्स भी आ गए और इररेशनल नंबर्स भी आ गए। अब हमने डिफाइन करना है प्रोबेबली हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सेट जो है ना इस पूरे कोर्स का, रियल नंबर्स। आपने ये वर्ड बार बार सुना होगा। ये क्या होते हैं, ये एक ऐसा सेट है जिसमें हम रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिख देते हैं। रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स को इकट्ठा करके एक सेट में अगर आप लिख दें तो वो आपका रियल नंबर्स का सेट है। अब आप पूछेंगे इसका क्या पॉइंट है, हमने रियल नंबर्स क्यों बनाए, क्यों हमारे पास अलग सेट था, इररेशनल नंबर्स हमारे पास अलग सेट था, तो उनको एक सेट में लिखने की क्या जरूरत है, रियल नंबर्स बनाने की क्या जरूरत है। तो होपफुली जब आप अपना रियल एनालिसिस का कोर्स पढ़ेंगे तो आपको इसका जवाब मिलेगा कि
बहुत सारी चीज़ें जो Q और I में खुद से नहीं है, लेकिन जब हम उनको कंबाइन करते हैं तो हमें बहुत ही ब्यूटीफुल और अच्छी प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं जो रियल नंबर्स में आ जाती हैं, जो हमें चाहिए होती हैं और वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे पास रियल नंबर्स में क्या है, रैशनल नंबर्स और इररैशनल नंबर्स को हमने इकट्ठा किया और रियल नंबर्स बना दिए। अच्छा, और फाइनली आखिरी सेट जो मैंने डिफाइन करना है नंबर्स का, वह है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपने ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स शायद पहले भी देखे होंगे, इसकी मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बहुत डीप टॉपिक है। आप क्या करते हैं, दो रियल नंबर लेते हैं और आई आपका आयोटा जिसको आप बोलेंगे वो है √-1। तो आयोटा जो है वो √-1 है। आपको ये तो पता ही होगा कि -1 या नेगेटिव नंबर्स का जो है वो स्क्वायर रूट डिफाइन नहीं है। अब नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट डिफाइन नहीं है तो अब हम उनका क्या करें, वो रियल नंबर्स में तो हमें उसका स्क्वायर रूट नहीं मिल सकता कि हमने ये बहुत वेल नोन फैक्ट है। अगर आपको अभी नहीं पता तो आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा किसी और कोर्स में, लेट्स से कैलकुलस में, कि नेगेटिव नंबर्स का अंडर रूट स्क्वायर रूट हम डिफाइन नहीं कर सकते रियल नंबर्स में। तो उनको डिफाइन करने के लिए हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनाए और ये हमने नोटेशन दिया, आयोटा जो है ना वो -1 का स्क्वायर रूट हम ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हम कुछ नए नंबर्स डिफाइन करते हैं। वो ये हैं कि हमारे पास आयोटा जो है वो हम इसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स सारे वो नंबर हैं जो a + आयोटा b की फॉर्म में। जैसे आप फॉर एग्जांपल ले सकते हैं 2 + आयोटा 5 और 5 आयोटा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, इसमें 2 एक रियल नंबर है, 5 भी एक रियल नंबर है। ठीक है, तो ये इस तरह के आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे और इसको हम इतना ज़्यादा कोशिश करेंगे यूज़ भी ना करें, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेट है और इसके बारे में होपफुली किसी और कोर्स में आपको मज़ीद डिटेल्स मिल जाएंगी। अच्छा, हम इसको जो नंबर्स के सेट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इररैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इन सब के का नाम आप बार बार इस कोर्स में सुनते रहेंगे और इंशाल्लाह हम इसकी अगर कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी तो वो भी हम इंशाल्लाह प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, अब जब हम सेट डिफाइन करते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ मज़ीद डेफिनेशंस होती हैं। आई एम श्योर ये आपको ऑलरेडी नोन है, लेकिन चूंकि हम कोई आपका प्रायर नॉलेज अज्यूम नहीं कर रहे तो हम उनको भी डिफाइन कर देते हैं। सबसेट क्या होता है, आपने सेट लिया, उसमें कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। जैसे आपने सेट लिया, आपका सेट है लेट्स से सेट लिया आपने A, तो आपका सेट A है लेट्स से 1 2 3 एंड 4। अच्छा, अब ये आपने एक सेट बना लिया, इसमें नंबर्स क्या हैं, सारे नेचुरल नंबर्स हैं 1 से लेकर 4 तक, सारे नेचुरल नंबर्स हैं 1 से लेकर 4 तक। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, मैं ये करता हूं कि मैं एक नया सेट बना देता हूं B, जिसमें मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखता हूं कि इस सेट में से कुछ नंबर्स में लेके उस सेट में लिख देता हूं। जैसे मैं लेट्स से कर देता हूं 2 और 4। ठीक है, अब B के सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो A से आ रहे हैं, B के सारे ऑब्जेक्ट्स A से आ रहे हैं और B में कोई एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अब B जो है वो सेट A का सबसेट होगा। तो हम इसको डिफाइन यूं कर सकते हैं कि a set B is a subset of a set A if all the objects of B are present in the set A। तो हम ये कह सकते हैं कि A सुपर सेट है, बड़ा सेट है, और B उसका छोटा सेट है, सबसेट है, सबसेट छोटा सेट। और सुपर सेट A को हम कह सकते हैं बड़ा सेट है, उसमें से हम कुछ ऑब्जेक्ट लेके हम B में रख रहे हैं, तो ये हमारा एक सबसेट है। तो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के जो तमाम सिटीज़ हैं उनका अगर आप सेट A लें, तो पाकिस्तान में जो डिविजन्स हैं उनका सेट B लें, तो डिविजन्स जो हैं वो
सिटीज़ का सबसेट है। हर सिटी एक डिवीज़न नहीं है, तो वो, लेकिन हर डिवीज़न एक सिटी भी है। तो पाकिस्तान के तमाम डिवीज़न्स का जो सेट है वो पाकिस्तान के तमाम सिटीज़ के सेट का सबसेट होगा। इसी तरह आप मज़ीद एग्जांपल्स दे सकते हैं। एक सेट जो है, इसी सेट का मैं एक और सबसेट बना सकता हूँ, लेट्स से C इज इक्वल टू 1 और 3, ठीक है। और इसी तरह आप ले सकते हैं 1 2 और 1 2 3 और बहुत सारे इसके सबसेट्स बन सकते हैं। तो बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपने अगर एलिमेंट्स जो हैं छोटे सेट के, स्मॉलर सेट के किसी बिगर सेट में से आ रहे हों तो वो उसका सबसेट होगा। जैसे आपको मैंने अभी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स दी, तो नेचुरल नंबर्स के सारे नंबर्स जो हैं वो इंटीजर्स में हैं, तो नेचुरल नंबर्स जो हैं वो इंटीजर्स का सबसेट है। इसी तरह होल नंबर सारे के सारे इंटीजर्स में हैं, तो जो हैं होल नंबर्स वो इंटीजर्स का सबसेट है। इसी तरह आप मजीद एग्जांपल्स इसकी देख सकते हैं। अच्छा, अब हर जो सेट है उसके कम अज कम 2 सबसेट जरूर होते हैं। एक सबसेट जो है उसको हम लेते हैं कि वो होगा हमारे पास, उसको हम फाई से डिनोट करते हैं, फाई से, और वो होता है जस्ट एम्प्टी सेट, ठीक है। अब ये सेट है, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ये सेट ए में है, क्योंकि ए में आप 1 2 3 4 हैं, लेकिन आप उन सबको एक्सक्लूड कर दें तो एक कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट भी उसके अंदर मौजूद है। तो हम ये फाई जो है ना, इससे डिनोट करेंगे सेट जो एम्प्टी है। हमारे पास सेट फाई है, उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। ये हमेशा सेट ए का किसी बड़े सेट का सबसेट जरूर होगा। सेट ए का एक सबसेट एम्प्टी सेट जरूर होगा। इसी तरह किसी सेट का एक और सबसेट भी जरूर होता है जिसको हम बोलते हैं जो है ए इटसेल्फ, ठीक है। तो ए जो है वो ए का सबसेट है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट ए के अंदर मौजूद हैं, तो ए जो है वो ए का सबसेट होगा। तो किसी भी सेट के कम से कम 2 सबसेट जरूर होते हैं, एम्प्टी सेट और द सेट इटसेल्फ, एम्प्टी सेट एंड द सेट इटसेल्फ। तो फिर ये सेट्स जो हैं ये सबसेट बहुत ट्रिवियल हैं, क्योंकि ये तो हमें हमेशा नोन होते हैं। इनको हम एक स्पेशल नेम दे देते हैं, ये हमारे इम्प्रॉपर सबसेट हैं। प्रॉपर ये हैं कि इम्प्रॉपर ये हैं कि ये 2 सेट्स यानी एम्प्टी सेट और सेट इटसेल्फ, ये दोनों इम्प्रॉपर हैं, इम्प्रॉपर सबसेट है। अच्छा, अब हम अगर इम्प्रॉपर की बात करते हैं तो कुछ प्रॉपर सबसेट भी होंगे। प्रॉपर सबसेट ये है कि जैसे मैंने अब ये बी सेट लिया ना यहाँ पे, तो अब बी सेट में 2 4 है, लेकिन 1 और 3 दोनों नहीं है। तो बी जो है वो ए का प्रॉपर सबसेट होगा जब ए में बी के अलावा भी कुछ एलिमेंट हो, ए में बी के अलावा भी कुछ एलिमेंट हो। अब जैसे बी है मेरे पास, बी में 2 4 है, ए में 1 और 3 नहीं, 1 और 3 बी है, तो ए में बी के अलावा भी कुछ एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए बी जो है वो ए का प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है। मतलब so a subset B of a set A is a proper subset if A has some more elements than the elements of the set B. Okay. इसी तरह C जो है वो A का प्रॉपर सबसेट है। इसी तरह आप बहुत सारे A के इसके अलावा भी कुछ मजीद प्रॉपर सबसेट्स बना सकते हैं। तो हर सेट के 2 सबसेट जरूर होंगे, इम्प्रॉपर सबसेट, एम्प्टी सेट और सेट इटसेल्फ। अच्छा, ये हो गया प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट। अब जैसे मैंने आपको डिफाइन कर दिया, एम्प्टी सबसेट क्या होता है? ऐसा सबसेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। अच्छा, अब यूनियन और इंटरसेक्शन अगेन आपको, मुझे श्योर है कि आपको पता होगा, लेकिन मैं फिर डिफाइन कर देता हूं ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब यूनियन क्या है? यूनियन ये है कि अगर मैं लेता हूं बी और इसको यूनियन करता हूं सी के साथ, यूनियन के लिए हम यू का साइन यूज करते हैं, यू का। अच्छा, अब मैं यूनियन करता हूं। अब मैं यूनियन कैसे करता हूं? अब बी यूनियन सी जब मैं करूंगा तो मैं क्या करूंगा, बी और सी दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक ही सेट में लिख दूंगा। तो ये क्या होगा? ये होगा जी 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 इसमें आएगा। ठीक है,
और ये सेट जो है B यूनियन C है। मतलब क्या करना है, मेरे पास सेट B भी है, मेरे पास सेट C भी है, इन दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके मैंने एक सेट में लिख दिया, तो ये मेरा यूनियन बन गया, ये मेरा B यूनियन C हो गया। अच्छा, अब इसी तरह आप कोई और अगर सबसेट डिफाइन करें, लेट्स से मैं एक सबसेट डिफाइन करता हूँ यहाँ पे D। अब D में मैं क्या करूँगा, D में मैं ये करता हूँ जी, मैं लिख देता हूँ 1 2 और 3, ठीक है। अब D एक सबसेट है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स A में से हैं, और ये एक प्रॉपर सबसेट भी है क्योंकि A में 4 भी है और D में नहीं है। अब मैं कहता हूँ जी आप डिफाइन कर दें, लेट्स से B यूनियन D। अच्छा, B यूनियन D क्या होगा सर, ये होगा मैंने B और D के जो हैं एलिमेंट्स कंबाइन करने, तो हमने क्या करना है जी, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 4 आ जाएगा, ठीक है। तो B यूनियन D फिर A के बराबर है। अब आप ये ना कहीं सोचिएगा कि जब भी यूनियन लेंगे तो हमारे पास हमारे पास सेट A वापस आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अगर आप यूनियन लें, फॉर एग्जांपल आप यूनियन लें C और D का, तो C और D का जो यूनियन है वो सेट A के इक्वल नहीं आएगा। अच्छा, अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट जो लास्ट में इस स्लाइड में लिखा हुआ है वो है जी इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन क्या होता है, अब इसमें यूनियन में मैंने क्या किया कि आपने दो सेट्स लिए, उनके जो एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन करके एक ही सेट में लिख दिया। अब इंटरसेक्शन में आप क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेट्स से मैंने लेना है, लेट्स से मैं B और D का इंटरसेक्शन लेता हूँ, B और D का। अब इंटरसेक्शन को मैं डिनोट करता हूँ उल्टा U लगा के मैं इसको डिनोट करूंगा, उल्टा U, B इंटरसेक्शन U। अच्छा, अब B इंटरसेक्शन U जो है वो क्या आएगा, अच्छा B यूनियन C में हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट को कंबाइन करके लिख दिया। जो अगर एक एलिमेंट एक सेट में है उसको भी लिखेंगे, अगर एलिमेंट दूसरे सेट में है उसको भी लिखेंगे। अच्छा, लेकिन इंटरसेक्शन में हम क्या करेंगे, वो एलिमेंट लिखेंगे जो दोनों सेट्स में आ रहा है, वो एलिमेंट लिखेंगे जो दोनों सेट्स में आ रहा है। इंटरसेक्शन में क्या होगा, वो एलिमेंट जो दोनों सेट्स में आ रहा है। तो लेट्स से मैं लिखता हूं जी इंटरसेक्शन D, तो इंटरसेक्शन में मैं B और D का इंटरसेक्शन ले रहा हूं, तो B और D में सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन है जो 2 है, ठीक है। 1 D में है, B में नहीं है, 2 दोनों में है, तो मैंने उसको लिख दिया, और 4 B में है, D में नहीं है, इसी तरह 3 जो है वो D में है लेकिन B में नहीं है। तो इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन अगर मैंने लेना है दो सेट्स का, तो उसमें मैं क्या करूंगा, मैंने दोनों के कॉमन एलिमेंट्स लिख देने। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है इंटरसेक्शन का। इसमें अब मजीद हम आगे चलते हैं थोड़ा। अच्छा, कुछ सिंबल्स हैं जो मैथमेटिक्स में बहुत कॉमन है, उसमें वो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। मुझे यकीन है कि आपको पहले भी पता होंगे, तो अगर आप इनको कहीं देखें तो आप कंफ्यूज ना हो। ये वो सिंबल्स हैं जो हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं, आपको अक्सर बुक्स में ये सिंबल जरूर मिलेंगे। अगर आपको कहीं ये सिंबल मिले उल्टा A, फॉर ऑल, उल्टा A, ठीक है, फॉर ऑल, इसका मतलब ये होता है कि ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये फॉर एग्जांपल सेट के बारे में बात कर रहा हूं, तो ये इस सेट के सारे एलिमेंट्स के लिए ट्रू है, फॉर एवरी एलिमेंट, फॉर ईच एलिमेंट, फॉर ऑल एलिमेंट्स। ये जो फॉर ऑल के बाद जो मैं बात करने लगा हूं, ये इस सेट के सारे एलिमेंट के लिए ये बात ट्रू है। तो फॉर ऑल के लिए हम उल्टा A का सिंबल लगाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक सेट लिखता हूं, S इज इक्वल टू, लेट्स से मैं कहता हूं 2 3 5 और 7, ठीक है। अब मैं कहता हूं जी एक एलिमेंट को मैं डिनोट करता हूं कि x जो है वो x एन एलिमेंट x जो है वो एलिमेंट है S का, ठीक है, एलिमेंट ऑफ S। अच्छा, अब x एलिमेंट है S का, और इसके बारे में मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं जी x इज प्राइम
x is prime for all x in S, ठीक है। अब ये जो मेरा x है वो प्राइम नंबर है किसके लिए? तमाम के तमाम एलिमेंट्स ऑफ S के लिए। अब आप देखें एलिमेंट्स ऑफ S को 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम। तो मैंने फॉर ऑल को यूज किया जब मैंने आखिर में जो बात की x जो है वो प्राइम है सारे के सारे एलिमेंट्स S के लिए। अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट अगर प्राइम नहीं होगा तो मैं ये यूज नहीं कर सकता। अच्छा, फिर आप एक और सिंबल देखेंगे जो आपको बहुत कॉमनली मिलेगा बुक्स वगैरह में। ये उल्टा ई सा हम लिखते हैं इसमें, ऐसे करके। इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, देयर इज वन। अब इसमें मैंने कहा कि x इज प्राइम फॉर ऑल x इन S। इसका मतलब है कि S के सारे एलिमेंट्स प्राइम है। अब मैं अगर ये देयर एग्जिस्ट लिखता हूं, इसका मतलब है कि इसमें कोई ना कोई एक एलिमेंट के लिए जो मैं बात करने लगा हूं वो जरूर ट्रू है, ठीक है। सारे के लिए ट्रू हो सकती है लेकिन एक के लिए जरूर ट्रू है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि इस सेट में देयर एग्जिस्ट x in S, let's say which is even, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि x के अंदर एक एलिमेंट मौजूद है जो इवन नंबर है। इवन नंबर क्या होता है? जो 2 पे डिवाइड होते हैं। इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 पे डिवाइड होते हैं। अब इस पूरे सेट के अंदर एक ही नंबर है जो इवन है, जो 2 है। 2 पे डिवाइड होता है, 3 नहीं होता, 5 भी नहीं होता और 7 भी नहीं होता। अच्छा, अब मैंने कहा कि देयर एग्जिस्ट x इन S विच इज इवन। ऑफ कोर्स S के अंदर 2 एक नंबर है जो 2 पे डिवाइड होता है और वो इवन है। अब ये बात जो है ना एक एलिमेंट के लिए ट्रू है, S के एक एलिमेंट के लिए ट्रू है, बस एक एलिमेंट के लिए ट्रू है तो ये इनफ है। देयर एग्जिस्ट के बाद जो स्टेटमेंट लिखी जाती है वो एक एलिमेंट के लिए ट्रू हो तो वो ट्रू मानी जाती है। अच्छा, इम्प्लाइज के लिए आपको पता ही होगा कि ये वाला सिंबल हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं। डबल लाइन लगा के फिर हम एरो लगाते हैं। ये इम्प्लाइज का है। इसका मतलब ये है कि जो मैंने पहले बात की है उससे मेरी नेक्स्ट बात इम्प्लाई होती है। मैं कहता हूं कि S is the set of all prime numbers, implies 2 is in S। अब मैं कह रहा हूं कि S में सारे प्राइम नंबर्स हैं। मैं ये कह रहा हूं कि 2 S में है, तो क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है तो वो S में होगा। तो मेरी पहली बात से दूसरी बात इम्प्लाई हो रही है, उससे वो अखज हो रही है, इसलिए मैं ये इम्प्लाई का साइन लगाऊंगा वहां जब ये। अच्छा, फिर इफ एंड ओनली इफ की बात हम करते हैं। इसके लिए हम ये मैंने ऑलरेडी एक लिख दिया है, IFF भी यूज करते हैं और फिर ये दोनों साइड का एरो लगा के भी हम इफ एंड ओनली इफ को डिनोट करते हैं। अच्छा, अब IFF भी लगाते हैं और ये भी लगाते हैं। इसका मतलब ये है कि पहली बात से दूसरी बात फॉलो होती है और दूसरी बात से पहली बात भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब है अगर पहली बात ट्रू है तो दूसरी ट्रू है, अगर दूसरी ट्रू है तो पहली भी ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स भी हम आगे जाके देखेंगे। अब सच दैट भी हम नोटेशन सेट में बहुत ज्यादा यूज होती है, सेट में हम इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इसके लिए हम ये स्ट्रेट लाइन बस लगा देते हैं, इसका मतलब है सच दैट। ये इसकी हम आपको इसकी एग्जांपल्स अभी देना शायद इतना आसान नहीं होगा, लेकिन हम आगे जब मैं सेट को डिफाइन करूं, सेट की एग्जांपल्स आपको दूंगा मजीद, तो हम इस नोटेशन को बहुत ज्यादा यूज करेंगे। इसकी शायद आपने अपनी एलिमेंट्री क्लासेस में सेट बिल्डर नोटेशन में ये चीजें आपने सारी देखी होंगी। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज जो हम यूज करेंगे वो है बिलोंग्स टू का साइन, ठीक है, ये वाला साइन। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो चीज है ना, जैसे ये मैंने लिखा कि फॉर ऑल एक्स इन एस यहाँ पे। अब इसको मैं लिख सकता हूँ आर देयर एग्जिस्ट एक्स इन एस, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स बिलोंग्स टू एस। इसका मतलब ये है कि x जो है वो S में है, x जो है वो
वो एस में है, तो ये बिलोंग्स टू का मतलब है। इसी तरह यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्स जो है वो एस के अंदर है, एक्स बिलोंग्स टू एस। तो इस तरह के ये कुछ सिंबल्स आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे इस कोर्स के अंदर। तो इसका ये इंट्रोडक्शन है। अच्छा, इस कुछ आगे जाते हैं हम। अच्छा, हमारे पास हमें दो चीज़ें चाहिए थी ग्रुप को डिफाइन करने के लिए। पहली चीज़ सेट क्या होता है, और फिर ज़ाहिर एग्जांपल्स भी चाहिए थी सेट्स की, ताकि हम उनको आगे जाके यूज़ कर सकें। तो हमने एक चीज़ डिफाइन कर ली है, एक चीज़ हमारे पास ऑलरेडी आ गई। अब दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो एक फंक्शन की डेफिनेशन चाहिए, और हम इंशाल्लाह अपना ग्रुप डिफाइन करने के काबिल हो जाएंगे। अब हमारे पास फंक्शन क्या चीज़ है, फंक्शन क्या चीज़ है हमारे पास, ये आपने कैलकुलस में देखी होंगी चीज़ें। अब आपकी हायर सेकेंडरी स्कूल जो है की बुक्स में भी ये आपको मिलेंगी, तो बैचलर्स की बुक्स में भी ये चीज़ें आपको मिलती हैं कि फंक्शन क्या होता है। तो मैं इसको ब्रीफली डिफाइन कर देता हूँ ताकि आपको इसका आइडिया हो जाए। जैसे मैंने कहा कि हम कोई नॉलेज अज्यूम नहीं कर रहे आपका, तो इंशाल्लाह आपको जो चीज़ें हमें चाहिए वो हम इसको आज पहले लेक्चर में डिफाइन करके फिर आगे हम अपनी चीज़ों अपने कोर्स के कंटिन्यू कर सकते हैं, ताकि जब आप ये लेक्चर ले रहे हो तो आपको किसी दूसरी जगह जाना ना पड़े, किसी बुक में जाना ना पड़े कि इन चीज़ों का क्या मतलब है, सारी चीज़ें आपको इसी लेक्चर के अंदर मिल जाए। अच्छा, फंक्शन क्या होता है, आपके पास दो सेट्स हैं, सेट हमने डिफाइन कर लिए, आपके पास दो सेट्स हैं ए और बी, उनके दरमियान में क्या रिलेशन है ये हम देखना चाहते हैं कि दो डिफरेंट सेट्स हैं, अब ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके दरमियान में आपस में क्या रिलेशन है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, एक मैप डिफाइन करते हैं एफ ए से बी में लेके जा रहा है। वो क्या होता है जी, फंक्शन हम तब उसे कहेंगे, फंक्शन हम तब इस मैप को कहेंगे, इस कॉरेस्पॉन्डेंस को कहेंगे कि अगर ये ए के सारे एलिमेंट के लिए बी का एक और सिर्फ एक एलिमेंट असाइन करें। ठीक है, सो वी विल कॉल अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी बिटवीन टू सेट्स ए एंड बी। So it's a rule that assigns to each element A in A a unique element f of A in B. Okay? So ये हमारी डेफिनेशन है, ये आपने पहले भी I'm sure देखी हुई होगी। फिर आपको ये भी आइडिया होगा कि A को हम डोमेन कहते हैं और B को कोडोमेन कहते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैथमेटिकली मैं यही चीज़ जो मैंने कहा है कि हर एलिमेंट ऑफ A के लिए एक और सिर्फ एक यूनिक एलिमेंट B का होना चाहिए, उसको मैं थोड़ा सा मैथमेटिकली कैसे लिखता हूँ, वो ये है कि f है a से b, उसको मैं फंक्शन कहूँगा अगर जब मैं a के ऊपर f अप्लाई करूँ तो वो एक b में एलिमेंट हो। जैसे मैंने यहाँ पे यूज कर लिया फॉर ऑल का सिंबल, a के सारे एलिमेंट्स के लिए, a के सारे एलिमेंट्स के लिए, फॉर ऑल a इन a। ठीक है, सो f ऑफ a जो है वो b में होना चाहिए a के सारे एलिमेंट्स के लिए। तो ये मेरी एक चीज को गारंटी करता है कि सारे एलिमेंट्स, ईच एलिमेंट ए इन ए, देयर विल बी एन एलिमेंट एफ ऑफ ए इन बी। अच्छा, इसमें दूसरी चीज हम ये देख रहे हैं कि यूनिक सिर्फ एक ही होना चाहिए। आपके पास ये तो आ गया कि एक तो है कम से कम, लेकिन हम ये चाहते हैं कि एक से ज्यादा ना हो, सिर्फ एक हो। तो फिर उसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं कि अगर ए के दो एलिमेंट सेम हैं, अगर ए सेट ए कैपिटल ए के दो एलिमेंट A1 और A2 सेम हैं, तो जब हम उनके ऊपर f अप्लाई करें तो B में जाके f ऑफ A1 और f ऑफ A2 B सेम हो। तो अगर दो एलिमेंट सेम हैं तो उनका इमेज B सेम हो। तो हम ये जो f ऑफ A है उसको कहते हैं ये इमेज है A का, f ऑफ A को A का इमेज कहते हैं। तो हम यूनिकनेस को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं कि अगर दो एलिमेंट A में सेम है तो अगर उनका हम चाहते हैं कि सिर्फ एक ही एलिमेंट B में उनको असाइन करें, तो जब हम उनका इमेज लें F के अंदर तो वो भी सेम होना चाहिए। अच्छा, ये हमारे पास डेफिनेशन है फंक्शन की जो आपने पहले भी I'm sure देखी हुई होगी। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। अच्छा, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, एक एग्जांपल मैंने दी हुई है आइडेंटिटी फंक्शन की एग्जांपल्स में। अब आइडेंटिटी फंक्शन ये होता है जी कि आपके पास एक फंक्शन है लेट्स से f, और उसको मैं डिफाइन करता हूँ
लेट्स से नेचुरल नंबर से लेकर आपको मैंने कहा था कि ये नंबर्स के सेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हमारे पास अपीयर होना शुरू हो गए। तो क्या है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक मैं इसको डिफाइन करता हूँ। अब इसको मैं आइडेंटिटी फंक्शन कह रहा हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि जो f ऑफ n जो है वो n के इक्वल होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है कि मैं n जो है नेचुरल नंबर्स का कोई भी एलिमेंट लूँ तो उसका जो इमेज है f के अंदर वो भी वही एलिमेंट होगा। जैसे आपको पता है कि नेचुरल नंबर 1 एक नेचुरल नंबर है, तो f ऑफ 1 जो है वो भी मैं कह रहा हूँ कि 1 ही होगा। ठीक है, इसी तरह आप दूसरे एलिमेंट्स का जो इमेज है वो भी आप इस f के अंदर ले सकते हैं और वो भी सेम होगा। अब ये एक फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया नेचुरल नंबर से लेकर नेचुरल नंबर्स तक। अच्छा, अब ये आप नेचुरल नंबर्स का कोई भी एलिमेंट लें, उसके लिए जब आप उसके ऊपर एक f अप्लाई करेंगे, दिस फंक्शन अप्लाई करेंगे, तो आपके पास एक और नेचुरल नंबर आएगा। तो यहाँ पे अगर दो नेचुरल नंबर सेम होंगे डोमेन के सेट में A में, जो यहाँ पे नेचुरल नंबर्स ही है, तो हमारे पास उसका रिजल्ट भी सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फंक्शन है। इसी तरह आप डिफाइन कर सकते हैं जीरो फंक्शन, मैंने इसको कहा है, लोग इसको बहुत सारे ऑथर्स इसको जीरो से डिनोट करते हैं। तो जीरो लेट्स से हम होल नंबर पे डिफाइन कर लेते हैं। तो होल नंबर्स W में लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो जीरो जो है ना, इसका कोई स्मॉल w एलिमेंट है, तो जीरो फंक्शन क्या करता है, इन सब को जीरो पे ले जाता है। ठीक है, अब ये फंक्शन जो है सब एलिमेंट्स को जीरो पे लेके जा रहा है। तो ऑफ कोर्स देन देयर विल बी एन एलिमेंट फॉर एवरी सिंगल, देयर विल बी एन इमेज फॉर एवरी सिंगल एलिमेंट ऑफ दिस होल नंबर इस मैप के अंदर, और सबको जीरो ही असाइन कर रहा है। तो मतलब ये है कि ये मैप जो है, अगर टू एलिमेंट सेम होंगे यहाँ पे, लेट्स से 2 अगर 2 के इक्वल है इस सेट में, तो 0 ऑफ 2 और 0 ऑफ 2 वो भी सेम होगा, क्योंकि 0 0 के इक्वल है। तो ये डेफिनेटली ये वाला मैप जो है, ये फंक्शन की, ये वाला रूल जो है, ये फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। अब ये दो बहुत ज़्यादा ट्रिवियल फंक्शंस थे। अब हम एक और फंक्शन की बात कर लेते हैं। लेट्स से हमारे पास रियल नंबर से रियल नंबर्स तक एक हमारे पास रूल है, उसको मैंने डिफाइन कैसे किया, डिफाइन मैंने ये किया कि क्या करें जी, मैं एक रियल नंबर लूँ, ये मैं इस मैप की अब बात कर रहा हूँ, एक रियल नंबर लूँ तो उसको क्या करना है, उसका स्क्वायर ले लेना जब मैं उसके ऊपर f अप्लाई करूँ। अब ये मैप क्या कर रहा है यहाँ पे जनाब, ये कर रहा है जी, अगर मैं एक रियल नंबर लूँ लेट्स से 2, f ऑफ 2 जो है वो 2 स्क्वायर होगा, जो कि आपको पता है 4 होगा। तो ये एलिमेंट्स जो हैं R के, उनको उनके स्क्वायर पे लेके जा रहा है। तो इसी तरह जो भी एलिमेंट आप लेंगे उसको ये उसके स्क्वायर पे ले जाएगा। तो अब अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट डिफरेंट होंगे तो उनका स्क्वायर भी डिफरेंट होगा। तो ये डेफिनेटली एक फंक्शन है, और हर जो रियल नंबर है उसका स्क्वायर एग्जिस्ट करता है। तो ये थर्ड वाला भी एक फंक्शन है। अब फोर्थ वालों का अगर हम देखते हैं, तो फोर्थ वाला है जी, जब आप रियल नंबर लें, तो इस फोर्थ वाले की अब मैं बात कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर मैप की, तो f ऑफ x जो है वो अंडर रूट एक्स है, स्क्वायर रूट SQRT का मतलब है स्क्वायर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स। तो अब जनाब ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन जब आप किसी रियल नंबर के ऊपर अप्लाई करें तो उसको उसके अंडर रूट पे ले जाता है। ठीक है, अच्छा, अब क्या ये फंक्शन है या नहीं है, ये एक क्वेश्चन है। अब अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि हम जो फंक्शंस हैं हमारे, उनको हम जो रियल नंबर्स हैं उनका स्क्वायर, नेगेटिव रियल नंबर्स का रियल नंबर्स में स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, नेगेटिव रियल नंबर्स का रियल नंबर्स में स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब हम ये मैप, ये फंक्शन है या नहीं है, ये रूल हमारा फंक्शन है या नहीं है। अब जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेता हूँ f ऑफ लेट्स से -2, ठीक है, ये मेरे पास हो गया स्क्वायर रूट ऑफ -2।
अब ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मेरे फंक्शन की ये डेफिनेशन है कि जब भी मैं कोई एलिमेंट लूँ डोमेन में, तो को डोमेन में उसका कोई ना कोई इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अब चूंकि सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स का इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंडर जो मेरी डोमेन है या को डोमेन है उसके अंदर मेरा इमेज एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ये मेरा एक फंक्शन नहीं है। इसी तरह जब आप अपनी बुक में जाएंगे तो होपफुली आपको बहुत सारी एग्जांपल्स मिल जाएंगी फंक्शंस की, और ऐसे भी आपको रूल्स और मिल जाएंगे जिनकी आप जो फंक्शंस नहीं होंगे। तो आप उसको काइंडली देखिएगा और कुछ मजीद एग्जांपल्स खुद से भी आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने दो चीज़ें आपके लिए डिफाइन कर दी हैं। आपको मैंने सेट बता दिया और आपको मैंने फंक्शन बता दिया। अब फंक्शन से एसोसिएटेड कुछ चीज़ें हैं जो हम डिफाइन करना चाहते हैं या कर सकते हैं। उसकी रेंज मैंने अगेन वर्ड यूज़ कर लिया। फिर फंक्शंस कुछ 1-1 होते हैं, कुछ ऑन टू होते हैं, तो उनके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। तो इस स्लाइड में आपको मैंने कुछ डेफिनेशंस दे दी हैं। तो हमारे पास एक फंक्शन है जिसकी रेंज क्या है? रेंज ये है कि ए डोमेन है और बी को डोमेन है। अब ये पॉसिबल है कि जब हम फंक्शन को उसकी को डोमेन के ऊपर मैप करें तो सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं बी के वो यूज ना हो। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी कि f जो है वो f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब स्क्वायर जो है नंबर्स का वो हमेशा पॉजिटिव होता है या जीरो होता है, जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, अदरवाइज ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब है जो इसकी रेंज थी, जो इसकी कोड में थी r, वो सारी की सारी यूज नहीं हुई क्योंकि उसके नेगेटिव नंबर्स भी हैं कितने सारे, तो वो इस्तेमाल नहीं हो रहे। तो हम रेंज उस सेट को कहते हैं, उस सब सेट को कहते हैं बी के जो एक्चुअली मैप हो रहे हैं, जो यूज हो रहे हैं। जो यूज नहीं हो रहे उनको हम निकाल देते हैं और बाकी जो बचते हैं उनको हम इसमें रख लेते हैं अपनी रेंज के सेट में। यहाँ पे थोड़ी सी आप करेक्शन कर लीजिएगा क्योंकि ये जो है ये कैपिटल बी है, ये जो सेट हमारा यहाँ पे ये कैपिटल बी होना चाहिए। तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स बी के जो एक्चुअली किसी न किसी एलिमेंट ऑफ ए का इमेज है, तो वो हम इस सेट में रखते हैं, जिसको हम रेंज कहते हैं। रेंज हो सकता है एफ ऑफ ए जो है वो हो सकता है कि वो बी के इक्वल भी हो और ये भी हो सकता है कि वो बी का एक सबसेट हो। अच्छा, अब एक दो और डेफिनेशन और फिर आज का लेक्चर हम समेटते हैं। डेफिनेशंस ये हैं कि फंक्शन जो है वो ऑन टू होता है अगर, मैंने जैसे कहा अभी आपको कि ये पॉसिबल है कि फंक्शन जो है वो उसकी रेंज जो है वो उसकी को डोमेन के इक्वल ना हो, लेकिन अगर फंक्शन की रेंज जो है वो को डोमेन के इक्वल हो जाती है तो हम उसको कहते हैं कि ये हमारी जो फंक्शन है वो ऑन टू है, ये फंक्शन हमारा ऑन टू है। ये इसके लिए एक और वर्ड भी यूज होता है जो हम प्रोबेबली यूज करेंगे। वी विल से दैट द फंक्शन इज सर्जेक्टिव। इफ द फंक्शन इज ऑन टू देन द फंक्शन इज सर्जेक्टिव। तो एक फंक्शन ऑन टू या सर्जेक्टिव होता है जब उसकी रेंज उसकी को डोमेन के इक्वल हो जाए। अच्छा, अब ये फंक्शन 1-1 कब होता है? अब फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसमें ये चीज है कि अगर उसके एलिमेंट्स ए के, अगर मैप ए से बी तक है तो अगर एलिमेंट्स ए के इक्वल हों तो उसका इमेज भी इक्वल हो। अब हम दूसरी साइड भी इसमें इंक्लूड कर रहे हैं 1-1 फंक्शन में कि अगर फंक्शंस का इमेज इक्वल हो तो उनका प्री इमेज, हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ ए को, उनका प्री इमेज भी इक्वल हो। तो हम ये यहाँ पे 1-1 की जब डेफिनेशन दे रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि ये डेफिनेशन है आपके पास। तो हम कह रहे हैं कि अगर फंक्शन का इमेज f ऑफ a1 और फंक्शन का a2 जो इमेज है, a2 का जो इमेज है वो दोनों सेम है, तो a1 और a2 भी सेम होने चाहिए। अच्छा, अब एक फंक्शन को हम बाइजेक्टिव कहेंगे, वो 1-1 भी हो, ऑन टू भी हो। अगर हम फंक्शन को बाइजेक्टिव कहेंगे जब हमारे पास वो 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो।
ठीक है। जैसे मैंने कहा कि फंक्शन ज़रूरी नहीं है कि 1 भी हो, 1 हो या और ये भी ज़रूरी नहीं कि 1 2 हो, लेकिन जब ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाएंगी तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन बाइजेक्टिव है। तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्टरी था, इसमें आपको मेन हमने यही चीज़ें बताई हैं कि इस कोर्स में क्या होगा, इसके एग्ज़ाम्स का स्ट्रक्चर क्या होगा, इसके जो बेसिक डेफिनेशंस जो हमें चाहिए थी वो हमने कुछ डिफ़ाइन किए हैं। जैसे मैंने आपको सेट की डेफिनेशन दी और एक फंक्शन की डेफिनेशन दी और उसके कुछ एग्जांपल्स हमने देखी। अब इन्हीं को यूज़ करते हुए जब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो इन्हीं को यूज़ करते हुए हम अपना जो है मेन एम जो इस कोर्स का है वो हम डिफाइन करेंगे ग्रुप, कि हमारे पास ग्रुप क्या होता है। तो हमें दो मेन चीज़ें उसमें चाहिए, दो मेन इंग्रेडिएंट हैं उसके। एक हमें ये चाहिए होगा कि सेट क्या होता है और एक हमें ये चाहिए होगा कि फंक्शन क्या होता है। तो जब हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह इन दोनों चीज़ों को यूज़ करते हुए हम ग्रुप की डेफिनेशन इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।